السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم SSLC سوشل سائنس کا باب علم سیاسیات میں باب نمبر 4 عالمی تنظیمیں، جو کہ UNO، یونیسیف، یہ تمام جو تنظیمیں ہیں، آج ہم اس کے بارے میں مزید معلومات کیا ہے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں، اپنے ہائی اسکول کے گروپس وغیرہ میں شیئر کیجئے۔ تو چلیں بنا کسی دیری کے سب سے پہلے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پور کیجئے۔ دیکھیں، نمبر 1، اقوام متحدہ کا آغاز ڈیش سن عیسوی میں ہوا۔ کب ہوا؟ 1945۔ اقوام متحدہ کا آغاز جو ہے 1945 سن عیسوی میں ہوا۔ نمبر 2، اقوام متحدہ کا صدر دفتر ڈیش شہر میں ہے۔ کون سے شہر میں ہے؟ امریکہ کے نیو یارک شہر میں۔ نمبر 3، اقوام متحدہ کا خاص ڈیش ادارے کو اس کی کابینہ بھی کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ سلامتی کونسل۔ اقوام متحدہ کا خاص ادارہ جسے کیا ہے؟ سلامتی کونسل کیا ہے؟ اسے کابینہ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، بین الاقوامی عدالت انصاف کے ججوں کی میعاد کتنے سال کی ہوتی ہے؟ 9 سال کی۔ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہوتے ہیں، ان کی میعاد جو ہے 9 سال کی ہوتی ہے۔ نیکسٹ، نمبر 5، عالمی ادارہ غذا اور زراعت کا صدر دفتر کہاں ہے؟ شہر روم میں کیا ہے؟ واقع ہے غذا اور زراعت کا صدر دفتر۔ نیکسٹ، نمبر 6، بین الاقوامی عدالت انصاف ڈیش شہر میں ہے۔ کون سے شہر میں؟ ہیگ۔ نیکسٹ، نمبر 7، اقوام متحدہ کے موجودہ جنرل سیکریٹری اینٹونی گٹرس، یہ جو ہے چینج ہوتے رہتے ہیں، اس کا بھی کیا ہے جواب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ، نمبر 8، عالمی ادارہ صحت کا قیام، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، 1948 میں۔ نمبر 9، سارک تنظیم کا قیام ڈیش سن عیسوی میں ہوا۔ سارک کا کیا ہے؟ 1985 میں کیا ہے؟ اس کا قیام جو ہے عمل میں آتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ 1 مارکس کے تمام سوالات کے جوابات جو کہ ڈیشز سے آپ ان کو دیکھ چکے ہیں۔ چلیے درجہ ذیل سوالوں کو گروہوں میں بحث کرتے ہوئے 2 یا 3 جملوں میں آپ کو کیا یہاں پر جواب دینا ہوگا۔ نمبر 10، اقوام متحدہ کے قیام میں پیش رہنے والے رہنما کون کون تھے؟ دیکھیں کون کون ہیں۔ برطانیہ کے ونسٹن چرچل ہیں، روس کے اسٹالن ہیں، اور امریکہ کے صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ۔ یہ جو ہے اقوام متحدہ کے قیام میں بڑھ چڑھ کر کیا ہے، یہ اقوام متحدہ کو بنانے میں کیا ہے اہم رول ادا کرتے ہیں۔ جو انگلینڈ کے ونسٹن چرچل ہیں، رشیا کے اسٹالن ہیں، اور امریکہ کے صدر کو ہے نا فرینکلن ڈی روزویلٹ۔ نیکسٹ، کوشچن نمبر 11، اقوام متحدہ کے خاص ادارے کون کون سے ہیں؟ آپ پڑھ چکے ہیں اقوام متحدہ کے خاص ادارے۔ پہلا عام اسمبلی ہے، دوسرا سلامتی کونسل ہے، تیسرا معاشی و سماجی کونسل ہے، چوتھا ٹرسٹیشپ کونسل ہے، نیکسٹ بین الاقوامی عدالت ہے، اس کے بعد جو ہے سیکریٹریٹ۔ دیکھیں، عام اسمبلی، سلامتی کونسل، معاشی و سماجی کونسل، ٹرسٹیشپ کونسل، بین الاقوامی عدالت اور سیکریٹریٹ ہیں۔ نیکسٹ، کوشچن نمبر 12، سلامتی کونسل کے مستقل ممبر کے ممالک کے نام لکھیے۔ جو پرماننٹ ممبر ہیں اس کے وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، پہلے امریکہ ہے، روس ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے اور چین ہے۔ یہ UNO کے پرماننٹ جو ہے ممبر کہلاتے ہیں۔ امریکہ، رشیا، برطانیہ، انگلینڈ، فرانس اور چین۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 13، عالمی ادارہ صحت کے مقاصد کیا ہیں؟ عالمی ادارہ صحت، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ نمبر 1، دنیا کے انسانوں کی صحت بچانا اور سدھارنا۔ نیکسٹ، آبادی کے دھماکے کی روک تھام، ماحول کے تحفظ کو برقرار رکھنا، بھوک اور صحت بخش غذا کی کمی کو ختم کرنا۔ اس کے کیا ہے مقاصد ہیں۔ نیکسٹ، کوشچن نمبر 14 دیکھیں، بین الاقوامی ادارہ محنت کے پروگراموں کی فہرست تیار کیجیے۔ کون کون سے ہیں؟ دیکھو، مزدوروں کو سماجی صحتی تحفظ اور زندگی کے معیار کو سدھارنا، خواتین مزدوروں کو زچگی کے لیے عمدہ سہولت مہیا کرنا، یہ تمام کیا ہے اس کے پروگرام کی فہرست ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 15، سارک لفظ کو پھیلائیے۔ سارک دیکھیے، یس ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن ریجنل کارپوریشن، جنوبی ایشیا کی انجمن برائے علاقائی تعاون۔
ये रहे 1 मार्क्स के सवालात। चलिए दर्ज झेल सवालात को ग्रोह में बहस करते हुए 10 जुमलों में जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, ये देखें। अक़वाम मुत्तहिदा के मक़ासिद क्या क्या हैं, यूएनओ के एम्स क्या क्या थे। देखें पहला क्या है, दुनिया में अमन और तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखना इसका पहला मकसद है। नेक्स्ट, मुल्कों के दरमियान दोस्ताना माहौल को फ़रोग़ देना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क को क्या है एक फ्रेंडली तौर पर बनाना। इंसान के बुनियादी हुकूक़ के मुतल्लक़ यकीन दहानी कराना। मुआशी, समाजी, सक़ाफ़ती और इंसान नवाजी के मसाइल को बैनुल अक़वामी ताआवुन से हासिल करना। नेक्स्ट, बैनुल अक़वामी सतह पर इंसाफ, मुआहिदों और शर्तों पर ज़ोर देना ही इसका असल मकसद है। मुल्कों में बाहमी ताउन के लिए काम करना, ये तमाम क्या है यूएनओ के मक़ासिद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आम असम्बली की तश्कील के मुतल्लक़ तफसील लिखिए। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मेंबरों पर मुश्तमिल होती है। हर मुल्क असम्बली को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मेंबर क्या है भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मुआशी और समाजी इदारे के प्रोग्रामों को लिखिए। समाजी और मुआशी, देखें पहला, और रिहाइश के मसले का हल करना, मुहाजरीन के मसाइल का ख़ात्मा, इंसानी हुकूक़ की पासदारी, ये तमाम क्या है समाजी मुआशी इदारे के क्या है प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आलमी सतह पर अमन को क़ायम करने में अक़वाम मुत्तहिदा का अहम रोल है, इस बयान की वजाहत कीजिए। देखें जवाब क्या है, अमन के क़याम के लिए कार्रवाइयाँ करना, कोरिया के तनाज़ा, स्वीज़ नहर के बहरान और वियतनाम जैसे मसलों को हल करना है। कश्मीर और फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा के हल के लिए मुसलसल काम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा तख़फ़ीफ़ इस्लाह के मकसद को हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है। माहौल की गर्मी के नुकसानदा असरात को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम क्या है उसके मुश्किल आसानियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के प्रोग्राम कौन कौन से हैं, यूनेस्को कौन कौन से प्रोग्रामों को क्या है मुंतकिल किया है। देखिए पहला है, दुनिया में साइंसी तालीम और सक़ाफ़ती को तरक्की देना। टेक्निकल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना। दिमागी, तख़लीक़ी, सक़ाफ़ती ख़यालात और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ में भी अहम किरदार जो है अदा करता है। नेक्स्ट, दुनिया भर में तालीम और मालूमात को मुंतक़िल करने सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों को भी ताआवन करता है। नेक्स्ट, आलमी सतह पर मौजूदा मुआशी मसाइल के हल में बैनुल अक़वामी माली फ़ंड के रोल को बयान कीजिए। देखिए उसका ये है जवाब, बैनुल अक़वामी माली मसाइल के मामलात को हल करने में कोशा है। आलमी तिजारत को तरक्की देना, मुआशी इस्तेहकाम का और तवाज़ुन अदगई के ज़रिए मुआशी हालात को क्या है सुधारने में ताअवन करता है। तरक्की याफ्ता ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात के फ़रोग़ देने में क्या ये अहम रोल अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दौलत मुश्तरिका के मक़ासिद की फ़हरिस्त तैयार कीजिए। कौन कौन से हैं, दस्तूर की जमात, आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़, गरीबी का तदारक, आलमी अमन के लिए फ़रोग़, खेल, साइंस और सक़ाफ़त वगैरह क्या है इसकी फ़हरिस्त है। दौलत मुश्तरिका के मक़ासिद की फ़हरिस्त है ये, दस्तूर की जमात, आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़, गरीबी का तदारक, आलमी अमन के लिए फ़रोग़, खेल, साइंस और सक़ाफ़त वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यूरोपीय बरादरी तंजीम के मुतल्लक़ से तफसील से लिखिए। देखें जवाब, यूरोपीय बरादरी 27 यूरोपीय ममालिक का इदारा है। 1992 ईस्वी में मैनचेस्टर मुआहिदे के ज़रिए क़ायम किया गया। वाहिद करेंसी, वाहिद ज़रई और तिजारती पॉलिसी वगैरह को नाफिज करने के लिए कायम हुआ यूरोपीय यूनियन एक अहम इदारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में WTO का सदर दफ्तर क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका सदर दफ्तर कहाँ पर है, जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अहम किरदार अदा करती है, क्यों? क्योंकि सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे अहम इदारा है और ये कौंसिल बैनुल अक़वामी अदालत व इंसाफ के जजों को मुंतखब करने के लिए जनरल सेक्रेटरी को हिदायत भी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर वाक़िया है, पहले पढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड के हैग शहर में वाक़िया है। नीदरलैंड का जो हैग शहर है वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है वाक़िया है। 2015 का सवाल देंगे, सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तक़िल मेंबरान कौन हैं?
मुस्तकिल मेंबरान सिक्योरिटी काउंसिल, एक रूस रहा, रशिया, बरतानिया, फ्रांस, चीन और USA। देखिए पहले रूस रहा, उसके बाद बरतानिया इंग्लैंड रहा, उसके बाद फ्रांस रहा, उसके बाद चीन रहा, उसके बाद USO अमेरिका। ये जो है रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 हम लोगों को यूनिसेफ कार्ड क्यों ख़रीदना चाहिए? जवाब, क्योंकि इस रकम को बच्चों की फलाह बहबूदी के लिए क्या है खर्च किया जाता है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, आपको पता होना चाहिए। देखें यूनिसेफ का लॉन्ग फॉर्म जो है यू से यूनिसेफ, नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, दैट्स कॉल्ड यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 मार्च का आलमी सतह पर मौजूदा मुआशी मसाइल के हल में बैनुल अक़वामी माली फ़ंड अहम रोल अदा करता है, इस बयान की वजाहत कीजिए। जवाब, ये बैनुल अक़वामी माली मसाइल के मामलात को हल करने में कोशां हैं, आलमी तिजारत को तरक्की देना और नो अमन अदायगी के ज़रिए मुआशी हालात को सुधारने में मावन करता है, तरक्की याफ्ता ममालिक और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ देने में अहम रोल अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का, अक़वाम मुत्तहदा के किसी इदारे को आलमी पार्लियामेंट कहा जाता है? किसको? जनरल असम्बली। नेक्स्ट 2016 का क्वेश्चन देखें, किसने पहली बार अक़वाम मुत्तहदा की इस्तिलाह पेश की? फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट। 2017 का देखें, तंज़ीम अक़वाम मुत्तहदा का सदर दफ्तर कहाँ पर वाक़या है? न्यूयॉर्क। कहाँ पर वाक़या है? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट 2017 का क्वेश्चन देखें, 24 अक्टूबर 1945 एक अहम दिन है क्योंकि तंज़ीम अक़वाम मुत्तहदा का वजूद इस साल अमल में आया। नेक्स्ट, तंज़ीम अक़वाम मुत्तहदा के ट्रस्टीशिप काउंसिल के काम में कमी आई है, क्यों? क्योंकि ट्रस्ट इलाक़ों और इंतज़ामी अक़वाम की तादाद कम कर दी गई है। नेक्स्ट 2018 का आलमी इदारा ग़िज़ा ज़राअत FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के मसले को हल करने के लिए कौन से काम अंजाम दे रहा है? एक, ज़राअत हलक़ों को तरक्की देना, सेहत बख्श ग़िज़ा की फ़राहमी, दुनिया की आबादी को भूखमरी से निजात दिलाना, दही इलाक़ों के लोगों की हालात ज़िंदगी को बेहतर बनाना। नेक्स्ट, अक़वाम मुत्तहदा का सदर दफ्तर कहाँ पर वाक़या है? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सवाल नंबर 2, बच्चों की फलाह बहबूदी के लिए यूनिसेफ किस तरह जद्दोजहद कर रही है? जवाब, यूनिसेफ के मुबारकबाद के कार्ड फ़रोख्त करके इस रकम को बच्चों की फलाह बहबूदी के लिए खर्च की जाती है। बच्चों और ख़वातीन के मुनासिब हालात में फलाह बहबूदी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2019 का अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल को क्या कहा जाता है? काबीना। अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल को काबीना भी कहा जाता है। नंबर 2, अक़वाम मुत्तहदा के मक़ासिद क्या हैं समझाइए। ये सवाल आप पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, आलमी इदारा ग़िज़ा और ज़राअत FAO का सदर दफ्तर कहाँ पर वाक़या है? आप पढ़ चुके हैं, रोम। तंज़ीम अक़वाम मुत्तहदा कारनामे बयान कीजिए। दुनिया में अमन वो बहाली का क़याम, मुआशी और मालियाती कारनामा, समाजी कारनामा, कई लड़ाई झगड़ों को रोका, जैसे नहर स्वेज़र का बहरान, ईरान, इंडोनेशिया, बोनान, कश्मीर, फ़लस्तीन, कोरिया, हंगरी। इसी तरह 2020 मार्च 2020 में सलामती कौंसिल के अहम वजूहात बयान की, जो भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, आलमी इदारा ग़िज़ा ज़राअत FAO का अहम मकसद भी क्या है? पहले पढ़ चुके हैं, देख लीजिए। 2021 का आलमी पार्लियामेंट आम असम्बली को कहा जाता है, किसको? आम असम्बली। लफ्ज़ अक़वाम मुत्तहदा की तजवीज़ करने वाला या डी रूज़वेल्ट।